ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकारबिंद संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीर्ण कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુનકુંદાચાર્ય દેવ પ્રથમ ગાથામાં માંગલિક કરીને પ્રતિજ્ઞા કરી છે. પ્રથમ ગાથાનો ભાવાર્થ ચાલે છે. ભાવાર્થમાં એમ કહું કે ગાથા સૂત્રમાં આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું છે વક્ષ્યામી. ગાથા સૂત્રમાં એટલે મૂળ ગ્રંથ કરતા કુનકુંદાચાર્ય દેવે કહ્યું છે કે વક્ષ્યામી. તેનો અર્થ ટીકાકાર એટલે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે વચ પરિભાષણે ધાતુથી પરિભાષણ કર્યો છે. પરિભાષણ શબ્દ છે એમનો અર્થ આગળ આચાર્ય ભગવંતે કર્યો છે. પરિભાષણનો અર્થ એવો છે કે યથાસ્થાનમાં યોગ્ય વાતને જણાવવી. યથાસ્થાનમાં યોગ્ય વાતને જણાવવી. જેમ આચાર્ય ભગવંતે યોગ્ય સ્થાન તો પહેલું માંગલિક કર્યું, પછી પ્રતિજ્ઞા કરી, પછી સંક્ષેપમાં કહ્યું, પછી વિસ્તારથી કહ્યું. બીજું કે 9 અધિકાર 415 ગાથામાં આચાર્ય ભગવંત ક્યાંય વિષયાંતર નહીં કરે. તો આ શાસ્ત્ર માટે એટલે કે સમયસાર માટે યોગ્ય સ્થાનમાં યોગ્ય વાત કરવી એને પરિભાષણ કહેવું છે. હવે આગળ કહે છે કે 14 પૂર્વમાં જે તીર્થંકર ભગવાન એમની દિવ્ય ધ્વનિ છૂટે તો એમના મુખ્ય ગણધર 12 અંગ 14 પૂર્વની રચના કરે. તો 14 પૂર્વ એ શાસ્ત્રો છે. એ 14 પૂર્વમાં જ્ઞાન પ્રવાદ નામનું 5મા પૂર્વમાં
એ જ્ઞાન પ્રવાદ નામનું 5મું પૂર્વ છે. એમાં 12 વસ્તુ અધિકાર છે. પૂર્વ 1 એની અંદર 12 વસ્તુ અધિકાર છે. એ વસ્તુ અધિકારમાં એકના 20 પ્રારબ્ધ અધિકાર છે. એટલે પહેલું કહ્યું પૂર્વ, પછી એમ કહ્યું કે 5મું પૂર્વ. 5મા પૂર્વના 12 વસ્તુ અધિકાર અને એક વસ્તુ અધિકારના 20 પ્રારબ્ધ. હવે કે છે તેમાં મૂળ સૂત્રોના શબ્દોનું જ્ઞાન તો પેલા મોટા આચાર્યોને હતું. મહાવીર ભગવાન થયા ત્યાર પછી 5 શ્રુત કેવડીઓ થયા. ત્યાં સુધી તો 12 અંગ 14 પૂર્વનું જ્ઞાન વિદ્યમાન હતું અને ગણધરની પરંપરાના આચાર્યો ઉપાધ્યાય સાધુઓ એનો જ્ઞાનનો ક્ષયોપસમ એવો હતો કે એમની ધારણા શક્તિ એટલી હતી કે 12 અંગ 14 પૂર્વની રચના કરવી પડતી નહોતી, કે શાસ્ત્રો રચના કરવી પડતી નહોતી. પણ ધીમે ધીમે એ ક્ષયોપસમ ઘટતો ગયો, એટલે શાસ્ત્ર રચના કરવી પડી. એમાં કુંકુંદાચાર્ય દેવના શાસ્ત્રો એમ કહેવાય છે કે 84 પાહુડ એમને રચના કરેલી. એ 84 પાહુડમાંથી વર્તમાનમાં સમયસાર, પ્રવચનસાર, પંચાસ્તિકાય, નિયમસાર ને અષ્ટપાહુડ આટલું આપણી પાસે વિદ્યમાન છે. આટલું વિદ્યમાન છે, બહુ અલ્પ છે વિદ્યમાનતા એની. એ 5 શાસ્ત્ર પણ આપણને યાદ નથી રહેતા. એટલે વિચાર કરો કે ક્ષયોપસમ કેટલો ક્ષીણ થતો જાય છે. વર્તમાન કાળે જો પૂજ્ય ગુરુદેવનું શાસન ટક્યું હોય તો એ આ 5 પરમગમમાં આપેલા સિદ્ધાંતોના આધારે આપણું શાસન ટકી રહ્યું છે. હવે આગળ કહે છે કે તેના અર્થનું જ્ઞાન એટલે 10મા વસ્તુ અધિકાર, જે સમય વસ્તુ અધિકાર છે, એમનું જ્ઞાન આચાર્યોની પરિપાટી અનુસાર શ્રી કુંકુંદાચાર્યને પણ હતું. તેમણે સમય પ્રારબ્ધનું પરિભાષણ કર્યું, એટલે કે પરિભાષા સૂત્ર બાંધ્યું. સૂત્ર કોને કહેવાય? તો કે સિદ્ધાંતોને સૂત્ર કીધું છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાનને પણ સૂત્ર કીધું છે. દ્રવ્યશ્રુત જ્ઞાનને પણ સૂત્ર કીધું છે. ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિને પણ સૂત્ર કહ્યું છે. તો કુંકુંદાચાર્ય દેવે આ પરમાગમોમાં જે સિદ્ધાંતો એના જે સૂત્ર બનાવ્યા, જેમ કે પ્રવચનસાર 10મી ગાથા, કે પરિણામ વસ્તુનો સ્વભાવ છે, તો એ એક સિદ્ધાંત છે. જેમ ગુરુદેવ કહેતા કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને કંઈ કરી શકતું નથી, તો એ સિદ્ધાંત છે. સત કોને કહેવાય? તો ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યાત્મક પણું, તો એ સૂત્ર છે, સિદ્ધાંત છે. તો કે છે કે એવા સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન કુંકુંદાચાર્ય દેવ પાસે હતું. હવે કે છે સૂત્રની 10 જાતિઓ કહેવામાં આવે છે. તેમાં એક પરિભાષા જાતિ પણ છે. હવે પરિભાષા જાતિ કોને કહેવાય?
એ વાત સમજાવે છે. અધિકારને જે યથાસ્થાનમાં અર્થ દ્વારા સૂચવે તે પરિભાષા કહેવાય. જેમ કે આ સમયસાર છે તો એનો કોઈ યોગ્ય ક્રમ છે અધિકારનો. જીવ અજીવ અધિકાર, પછી કર્તા કર્મ અધિકાર, પછી પુણ્ય પાપ અધિકાર, પછી આશ્રવ અધિકાર. હવે આશ્રવ પછી સંવર નિજરા મૂક્યા. કેમ? તો કે આશ્રવનો નાશ કરવો હોય તો સંવર નિજરાથી થાય. તો એનો કોઈ યોગ્ય ક્રમ મૂક્યો કે આશ્રવ પછી સંવર નિજરા અધિકાર. કેમ? એવી રીતે બંધ અધિકાર પછી મોક્ષ અધિકાર મૂક્યો. તો બંધનો નાશ કોનાથી થાય? તો કે મોક્ષથી થાય. ક્યારેક ક્રમ બદલાવે તો પણ એનું યથાસ્થાન યોગ્ય સ્થાન હોય. કઈ રીતે? કે ઘણા શાસ્ત્રોએ, જેમ કે તત્વાર સૂત્ર, તો આશ્રવ અધિકાર પછી બંધ અધિકાર મૂકે તો ત્યાં બંધનું કારણ આશ્રવ છે એમ સિદ્ધ કરવું છે. સંવર નિજરા પછી મોક્ષ મૂકે તો મોક્ષનું કારણ સંવર નિજરા છે. તો આમ જે અધિકાર મૂકે એનું કોઈ યોગ્ય સ્થાન પ્રમાણે મૂકે, એને પરિભાષણે કેવું છે. હવે આગળ કહે છે, શ્રી કુંકુંદાચાર્ય સમય પ્રાભૃતનું પરિભાષણ કરે છે. એટલે કે સમય પ્રાભૃતના અર્થને જ યથાસ્થાનમાં જણાવનારું પરિભાષા સૂત્ર રચે છે. આટલો વિષય ગઈકાલે ચાલ્યો હતો. હવે આગળ, आचार्य मंगल अर्थे सिद्धों को नमस्कार करते हैं. आचार्य भगवंत ने क्या किया? तो कि मांगलिक किया. मंगल अर्थ ऐसा शब्द है ना, उसका अर्थ है मांगलिक किया. मांगलिक करके किसको वंदन किया? तो कि सिद्ध परमात्मा को वंदन किया. इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है. ये शास्त्र का जो अभ्यास करेगा और चौथे गुणस्थान से सिद्ध पद की प्राप्ति तक जो जीव वेद ज्ञान करता रहेगा उसको सिद्ध पद की प्राप्ति होती है. तो सिद्ध पद किसको कहते हैं? तो कि सिद्ध भगवान अशरीरी है, शरीर से रहित है. तो आचार्य मंगल के अर्थ सिद्धों को नमस्कार किया. संसारी को शुद्धात्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्धात्मा है. क्या कहा? संसारी को किसका लक्ष्य करना चाहिए? तो कि त्रिकाल शुद्धात्मा का. क्यों त्रिकाल शुद्धात्मा का लक्ष्य करना चाहिए? तो कि शुद्धात्मा का लक्ष्य करने से ही परिणाम में वितरागता प्रकट हो सकती है. शुद्धात्मा का लक्ष्य करने से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है. शुद्धात्मा का लक्ष्य करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है. तो अज्ञानी जीव उसके लिए परिणाम में वितरागता प्रकट करनी है तो उसका लक्ष्य त्रिकाल शुद्धात्मा को ग्रहण करना, वो लक्ष्य होना चाहिए. अब आगे बताया, और
सिद्ध साक्षात शुद्धात्मा है। सिद्ध भगवान स्वभाव से भी शुद्धात्मा, परिणाम से भी शुद्धात्मा। जो सिद्ध परमात्मा का आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है, स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध है, वो स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन किया तो परिणाम में भी परिपूर्ण वितरागता प्रकट हो गई। अब आगे, तेथी उसको नमस्कार करना उचित है। सिद्ध भगवान को क्यों नमस्कार किया, उसका कारण बताया। प्रथम कारण ये बताया कि अज्ञानी जीव को शुद्धात्मा का लक्ष्य करना चाहिए। दूसरी बात बताई, सिद्ध परमात्मा साक्षात शुद्धात्मा है, इसलिए यहाँ हमारे हृदय में और आपके हृदय में सिद्ध परमात्मा को स्थापित किया है। उसका तू लक्ष्य कर, उसको तू ध्येय बना। किसी इष्ट देव का नाम नहीं लिया और किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, तो उसकी चर्चा टीकाकार ने मांगलिक में की है, वो यहाँ भी जानना। अब आगे, सिद्धों को सर्व ऐसा विशेषण दिया है। सर्व का अर्थ क्या है? सर्व सिद्धों का अर्थ क्या है? तो कि सिद्धशिला पर अनादि से आज तक अनंत जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं। ऐसे अनंत सिद्धों को मैं वंदन करता हूँ, ऐसे अनंत सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो शुद्धात्मा एक ही है। स्वभाव से देखा जाए तो सर्वसिद्ध शुद्धात्मा है, सर्व अज्ञानी जीव भी शुद्धात्मा है। परिणाम की ओर से देखा जाए तो परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य सादी अनंत काल के लिए जो प्रकट हुआ है वो सिद्ध भगवान को हुआ है। तो देखो, शुद्ध आत्मा एक ही है। अब यहाँ दूसरी बात बताते हैं कि कुछ संप्रदाय ऐसा मानता है कि शुद्धात्मा पूरे विश्व में एक ही आत्मा है। और यहाँ आचार्य भगवान ने बताया कि आज तक तो अनंत सिद्ध हो गए। तो जो एक पाखंड मत, एक मिथ्या मत ऐसा मानता है कि पूरे विश्व में एक ही आत्मा है, वो विपरीत अभिप्राय है, वो मिथ्या अभिप्राय है, वो मिथ्या मत है। उसका यहाँ खंडन किया। किसके माध्यम से खंडन किया? तो कि आज तक अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धशिला पर विराजमान है, ऐसा दिखाकर जो ऐसा मानते हैं कि पूरे विश्व में एक ही शुद्धात्मा है, अनंत नहीं है, ऐसे विपरीत अभिप्राय वाले, ऐसे पाखंड मत वाले का मत का खंडन किया है। जो शास्त्र का विवेचन होता है, वो विवेचन में एक विवेचन ऐसा है, मतार्थ,
मतार्थ का अर्थ क्या होता है कि मिथ्या अभिप्राय वाले जितने मत है उसका भी ज्ञानी खंडन करते हैं। क्यों खंडन करते हैं? तो कि तेरे में ऐसा मिथ्या अभिप्राय हो, ऐसा मिथ्या अभिप्राय वर्तमान में तूने ग्रहण किया हो, तो वो तो ग्रहित मिथ्यात्व है। और ग्रहित मिथ्यात्व तो स्थूल मिथ्यात्व है। अगर स्थूल मिथ्यात्व भी तेरा नहीं छूट सकता तो अग्रहित मिथ्यात्व तो कैसे छूटेगा? क्या कहा फिर से? आचार्य भगवंत શાસ્ત્રોનું નિરૂપણ કરે ત્યારે મતાર્થથી પણ વસ્તુનું નિરૂપણ કરે છે। તો કે મતાર્થ કોને કહેવાય? તો કે 363 ખોટા મત વિશ્વમાં ચાલે છે। એ 363 પાખંડ મત કહો, ખોટા મત કહો, મિથ્યા મત કહો, એવા અભિપ્રાય આપણા પરિણામમાં ક્યાંક ક્યાંક છે। એ 363 પાખંડ મત છે એ છે વર્તમાનમાં ગ્રહણ કરેલા, માટે ગ્રહિત મિથ્યાત્વ છે। ગ્રહિત મિથ્યાત્વ સ્થૂળ મિથ્યાત્વ છે। અગ્રહિત મિથ્યાત્વ સૂક્ષ્મ મિથ્યાત્વ છે। તો જો સ્થૂળ મિથ્યાત્વ પણ નાશ ન થઈ શકે આપણાથી, તો સૂક્ષ્મ મિથ્યાત્વ તો ક્યાંથી નાશ થાય? તો આચાર્ય ભગવાન ખોટા મતો એનું નિરાકરણ કરવા માટે, ખોટા મતોને ખોટા મત છે તેમ સિદ્ધ કરવા માટે મતાર્થથી પણ વર્ણન કરે છે। તો અહીંયા વર્ણન કર્યું કે વિશ્વમાં એક ધર્મ એવો છે કે જે એમ માને છે કે વિશ્વવ્યાપી એક જ ભગવાન છે। તો અહીં આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે અત્યાર સુધીમાં તો અનંત સિદ્ધ પરમાત્માઓ થઈ ગયા। તો અનંત સિદ્ધ પરમાત્મા થયા એનો અર્થ એમ કે વિશ્વવ્યાપી કોઈ એક જીવ નથી, વિશ્વમાં તો અનંત જીવો છે। એ અનંત જીવોમાંથી દર 6 માસને 8 સમયે 608 જીવ મોક્ષમાં જાય છે, સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત કરે છે। એવો 6 માસને 8 સમયનો કાળ, એવો તો અનંતો કાળ ગયો। તો અત્યાર સુધીમાં અનંત સિદ્ધ થયા। તો જે ધર્મ માત્ર એક જીવ છે એમ માને છે એનું અહીંયા ખંડન કર્યું। હવે આગળ કહે છે, श्रुत केवली शब्द का अर्थ, जो आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा में कहा ना, पहली गाथा में कहा कि श्रुत केवली ने कहा है वो समय प्रावृत को मैं कहूँगा। तो श्रुत केवली किसको कहे? तो श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का है, एक भाव श्रुत ज्ञान, दूसरा द्रव्य श्रुत ज्ञान। द्रव्य श्रुत ज्ञान में क्या है? तो कि 12 अंग 14 पूर्व की रचना, वो द्रव्य श्रुत है। और 12 अंग 14 पूर्व पूर्णपणे जो जानते हैं
ऐसे गणधर को श्रुत केवली कहने में आता है। माताजी ने जाति स्मरण ज्ञान में कहा कि महाविद्य क्षेत्र में केवली और श्रुत केवली उसके झुंड थे। तो कुंकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में जाकर केवली और श्रुत केवली का परिचय किया है। वहाँ दोनों की वाणी सुनी है। वो वाणी सुनकर यहाँ आए और बाद में ये शास्त्र रचना करते समय कहा कि ये समय प्रावृत जो श्रुत केवली ने कहा है, तो प्रश्न ये उठा कि श्रुत केवली किसको कहे? तो कि श्रुत को केवल जानने वाले, श्रुत को केवल जानने वाले उसको श्रुत केवली कहने में आता है। तो श्रुत ज्ञान में क्या आता है? तो कि 12 14 पूर्व आता है। तो 12 14 पूर्व को जानने वाले कौन हैं? तो कि गणधर है। ऐसे गणधर के पास हमने समय प्रावृत सुना है और यहाँ आके इस शास्त्र की मैं रचना करता हूँ, ऐसा कुंकुंदाचार्य देव फरमाते हैं। શું કહ્યું? પરિવાર ગુજરાતી શ્રુત કેવડી કોને કહેવાય? તો કે જે શ્રુત જ્ઞાનને પૂર્ણપણે જાણે છે, જે શ્રુત જ્ઞાનને કેવળ જાણે છે, તેને શ્રુત કેવડી કહેવાય। તો દ્રવ્ય શ્રુત 12 14 પૂર્વ એના રચયિતા, એના જાણનારા એ તો ગણધર છે। ભગવાનની વાણી સાંભળીને 12 14 પૂર્વ રચે છે। તો જે 12 14 પૂર્વને જાણે છે એવા ગણધર પાસે અમે સમય પ્રાવૃત એમને કહેલું છે, સાંભળ્યું છે અને અહીંયા અમે એમની રચના કરીએ છીએ। तो जो क्या लिखा है? श्रुत केवली शब्द का अर्थ श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवारूप आगम। 12 14 पूर्व अनादिकाल से चले आते हैं, क्योंकि अनादि से भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, इरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, महाविद्य क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं। ऐसे विविध क्षेत्र में जो विविध तीर्थंकर होते हैं वो सभी तीर्थंकरों के गणधर होते हैं और वो गणधर भगवान की वाणी सुनकर 12 14 पूर्व की रचना तो अनादिकाल से करते आते हैं। तो क्या बताया कि अनादि निधन प्रवारूप आगम यानी केवड़ी अर्थात सर्वज्ञ देव ने कहा, तेमज श्रुत अपेक्षा से केवड़ी समान द्रव्य श्रुत की अपेक्षा से केवली समान। केवली समान क्यों कहा? कि दिव्य ध्वनि में 12 14 पूर्व की बात आई। वो 12 14 पूर्व का ज्ञान
गणधर ने कर लिया, उस अपेक्षा से केवली समान कहा। ऐसे गणधर देवादि विशिष्ट श्रुत ज्ञान धारक को कहा। श्रुत ज्ञान को धरने वाले, श्रुत ज्ञान को धरने वाले, वो श्रुत केवड़ी। तो यहाँ कौन सा श्रुत ज्ञान की बात है? द्रव्य श्रुत। लेकिन द्रव्य श्रुत भाव श्रुत ज्ञान के बिना होता नहीं। तो जिसको भाव श्रुत ज्ञान है, आत्मा का अनुभव है, गणधर है, उसको सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान और सम्यक मनपरि ज्ञान है। गणधर रुद्धिधारी होते हैं, 64 रुद्धियां उसको प्रकट रूप है, उसमें एक श्रुत लब्धि भी है। तो जो भगवान की वाणी श्रुत लब्धि से गणधर ने उदाहरण कर ली, ग्रहण कर ली, अपने हृदय में समा ली, अपने भाव में समा ली, ऐसे जीव को श्रुत ज्ञान धर कहने में आता है। उससे समय प्रारब्ध की प्राप्ति कही है, उसके पास से समय प्रारब्ध सुना है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताकर, देखो ये समय सार ग्रंथ है, वो वितराग ग्रंथ है, सत्यार्थ ग्रंथ है। एक ग्रंथ से जीव सम्यक दशज्ञान चारित्र प्रकट कर सकता है। ये सब बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण क्या दिया? तो कि 3 काल 3 लोक को जानने वाले तीर्थंकर परमात्मा, उसने पूरे विश्व को एक समय में जान लिया और दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो पूरे विश्व को जाना है, जो पूरे विश्व को जाना है, उसको दिव्य ध्वनि के माध्यम से विश्व का स्वरूप बताया। ऐसा जो विश्व का स्वरूप बताया, वो गणधर ने अपने ज्ञान में ग्रहण कर लिया। तो ये तो परंपरा से देखो तो तीर्थंकर भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, दिव्य ध्वनि है। ये वाणी राग द्वेष रहित है। ये वाणी पूरे विश्व को जानने वाले ज्ञान को अनुसरण करके निकली हुई है। इसलिए ये शास्त्र प्रमाण शास्त्र है, सत्या शास्त्र है। ये शास्त्र कोई कल्पित नहीं है। जिसको आत्मा का अनुभव न हो, जिसने 3 काल 3 लोक को जाना न हो, जो राग द्वेष रहित नहीं हुए हो, वो वितराग शास्त्र की रचना कैसे कर सकते हैं? वो तो नहीं कर सकते। और जिसको सर्वज्ञपना प्रकट नहीं हुआ, पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं हुई, तो उसका शास्त्र तो कल्पित शास्त्र है। और कल्पित शास्त्र यानी ऐसा वास्तविक विश्व का स्वरूप नहीं है। तो आचार्य भगवान ने समय सार शास्त्र, समय प्रारब्ध एक सत्यार्थ शास्त्र है, ऐसा प्रमाण दिया। उसकी बुद्धि से किसकी बुद्धि से?
तो कि अज्ञानी की बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया। अज्ञानी कोई भी पुस्तक लिखेगा तो आत्मा के अनुभव बिना है, तो उसमें कुछ न कुछ विपरीतता आ जाती है। अब आगे, अन्यवादी अल्पज्ञानी अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप किसी प्रकार से कहकर विवाद खड़ा करते हैं, उसको उसका अयथार्थपना, असत्यार्थपना बताया। उसका अर्थ इतना कि किसके रचे हुए शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो कि ज्ञानी के द्वारा रचा हुआ ही शास्त्र कहने में आता है, उसको पढ़ना चाहिए। अज्ञानी की रचना वो शास्त्र नहीं है। इस ग्रंथ का अभिधेय, अभिधेय का अर्थ है ध्येय। ये ग्रंथ का ध्येय क्या है? समयसार शास्त्र का ध्येय क्या है? समयसार शास्त्र का प्रयोजन क्या है? समयसार शास्त्र क्या सिद्ध करना चाहता है? समयसार शास्त्र ने क्या सिद्ध किया है? देखो क्या लिखा है, ये ग्रंथ का अभिधेय आगे संबंध, जो शास्त्र का शब्द है उसका वाच्य क्या है? पानी शब्द में पानी नहीं है, पानी शब्द के वाच्य में पानी का और पानी की शीतलता है। आत्मा शब्द में आत्मा नहीं है, आत्मा शब्द का वाच्य वो ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा है। तो ये समयसार के जो शब्द है उसका संबंध, तो देखो गुरु शिष्य के बीच में संबंध शब्द के माध्यम से होता है। गुरु उपदेश देंगे, लेकिन वो उपदेश कैसा होगा? तो कि गुरु ने आत्मा का अनुभव किया और अनुभव को अनुसरण करके शब्द का उच्चारण किया। अब जो ज्ञानी गुरु ने शब्द का उच्चारण किया, तो ज्ञानी गुरु शब्द दिखाना चाहते हैं कि आत्मा और उसकी अनुभूति दिखाना चाहते हैं। तो कि शब्द के पास रुकना मत, शब्द के पास रुकना मत। शब्द के पास रुकोगे तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो शुद्धात्मा का स्वरूप वो अभिधेय है। देखो पहले से बता दिया, ये ग्रंथ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को दिखाएगा। ये ग्रंथ ज्ञायक को दिखाएगा। ये ग्रंथ अनंत गुणात्मक त्रिकाल शुद्ध आत्म स्वरूप को दिखाएगा। ये ग्रंथ परम प्राणिक भाव को दिखाएगा। जब समय की व्याख्या की थी तो उसमें समय यानी जीव, तब समय सार का अर्थ किया था जीव में सारभूत। तो जीव में तो
जीव का ज्ञायक स्वभाव है, उसके अनंत गुण है, उसकी पर्याय है, उसमें सारभूत क्या? तो ज्ञायक स्वभाव। तो पहले से यहाँ आचार्य भगवान दिखा देते हैं कि ये शास्त्र का प्रयोजन सिर्फ शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाने का है। तो देखो, जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है, उसी प्रकार समय सार के प्रत्येक अधिकार में, प्रत्येक गाथा में तुझे सिर्फ ज्ञायक दिखने में आना चाहिए। किसी भी अधिकार का अभ्यास करो, किसी भी गाथा का अभ्यास करो, उसमें आपको सिर्फ न सिर्फ ज्ञायक दिखने में आना चाहिए। गुरुदेव के प्रवचन सुनना समय सारिया शास्त्र पर, प्रत्येक गाथा, प्रत्येक अधिकार में गुरुदेव त्रिकाल शुद्धात्मा तक आ जाएंगे। सभी प्रवचन में, एक प्रवचन में नहीं, सभी प्रवचन में। कोई भी अधिकार हो, कर्ता कर्म अधिकार हो, पुण्य पाप अधिकार हो, आश्रव अधिकार हो, संवर निद्रा अधिकार हो, बंध अधिकार हो, के मोक्ष अधिकार हो, के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हो, सभी अधिकार में गुरुदेव प्रत्येक गाथा में ज्ञायक स्वभाव को मुख्य रख के वर्णन करेंगे। अर्जुन को अकेली आंख दिखती है, तुझे अकेला ज्ञायक दिखने में आना चाहिए। तो उसका वाचक ये ग्रंथों में जो शब्द है, उसका और शुद्धात्मा का वाच्य वाचक संबंध, वो संबंध है। शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना वही प्रयोजन है। क्या कहा कि यहाँ समय सार का जो शब्द प्रयोग होगा, वो शब्द को ग्रहण मत करना। वो शब्द कहाँ तक ले जाते हैं? तो के ज्ञायक स्वभाव तक ले जाते हैं। तो तुझे ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करना है। जैसे चाय में मिठास नहीं है, इतना किसी ने कहा, उसके साथ साथ शक्कर पर नजर जाएगी। उस शक्कर को उठाकर चाय में डालेंगे, तो इसमें शक्कर नहीं है, वो शब्द को ग्रहण नहीं किया। वो शब्द के वाच्य को ग्रहण करके एक चम्मच शक्कर ली, चाय में डाल दी। उसी प्रकार यहाँ आचार्य भगवान शब्द प्रयोग करे, वो शब्द के माध्यम से जो ज्ञायक तक आचार्य भगवान ले जाना चाहते हैं, उस ज्ञायक पर तेरी दृष्टि जानी चाहिए। ये शास्त्र का ये ध्येय है। तो यहाँ भावार्थ पूर्ण हुआ। जो भावार्थ की जो लास्ट बात है, फिर से गुजराती में, कि आ ग्रंथनो अभिधेय, अभिधेय એટલે આ શાસ્ત્રનું ધ્યેય શું છે, આ શાસ્ત્રનું પ્રયોજન શું છે, આ શાસ્ત્ર શું સિદ્ધ કરવા માંગે છે।
પછી કે છે આ ગ્રંથનો સંબંધ, આ ગ્રંથનો સંબંધ એટલે વાચ્ય વાચક સંબંધ. શબ્દ દ્વારા વાચ્ય સુધી પહોંચી જવું, શબ્દ દ્વારા પ્રયોજન સુધી પહોંચી જવું. જેમ બેનશ્રી કહે છે ને કે ગુરુદેવ સ્વભાવ શબ્દ બોલે એ સાથે સોસરવટ ઘા લાગવો જોઈએ. એટલે શું? તો કે એક તરફ ગુરુદેવ સ્વભાવ શબ્દ બોલ્યા, એ સાથે જ આપણો ઉપયોગ બહારથી પલટાઈને જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહણ કરી લેવો જોઈએ. તેમણે શબ્દ ન પકડ્યા, સીધો પ્રયોગ કર્યો, સીધો ઉપયોગ બહારથી પલટાવીને જ્ઞાયક સન્મુખ કરી દીધો. હવે કે છે એને સંબંધ કીધો. હવે કે છે પ્રયોજન તો પ્રગટ જ છે. પ્રયોજન શું છે? તો કે શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ તે અભિધેય છે. એટલે કે શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ, સ્વરૂપ, રૂપ એટલે સ્વભાવ, સ્વસ્વભાવ. તો શુદ્ધાત્માનો સ્વસ્વભાવ તે અભિધેય છે. અભિધેય છે એટલે ધ્યેય છે. તો તું આત્માનો સ્વસ્વભાવ, શુદ્ધાત્માનો સ્વસ્વભાવ એ ધ્યેય છે, એને ગ્રહણ કરી લે. એ પ્રયોજન છે. તેના વાચક આ ગ્રંથમાં શબ્દો છે. તેના વાચક એટલે શુદ્ધાત્માના વાચક, શુદ્ધાત્માને દર્શાવે એવા શબ્દો આ ગ્રંથમાં છે. તેમનો અને શુદ્ધાત્માનો, તેમનો એટલે શબ્દોનો અને શુદ્ધાત્માનો વાચ્ય વાચકરૂપ સંબંધ તે સંબંધ છે. સંબંધ કોને કીધો? વાચ્ય વાચક. શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવી તે પ્રયોજન છે. તો શુદ્ધાત્માના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરી લેવી એ આ શાસ્ત્રનું પ્રયોજન છે. હવે જો તું એ પ્રયોજન ચૂકી જઈએ અને શાસ્ત્ર વાંચે, તે શાસ્ત્રનું મનન ચિંતન કાંઈ ઉપયોગી નથી. જો આચાર્ય ભગવાન ઉપયોગાત્મકપણે આ શાસ્ત્રની રચના એવી કરી છે કે ગાથાએ ગાથાએ, અધિકારે અધિકારે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા તને બતાવ્યા કરશે. ગાથાએ ગાથાએ તને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા ગ્રહણ કરાવશે. પણ એ ધ્યેય ચૂકીને તું સાંભળે, એ ધ્યેય ચૂકીને તું વાંચે, એ ધ્યેય ચૂકીને તું મનન ચિંતન કરે, કે એ ધ્યેય ચૂકીને કદાચ તું ધારણામાં 415 ગાથા રાખ, તેનાથી તને કાંઈ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. હવે गाथा बीजी, अब दूसरी गाथा, उसका हेडिंग है, ये हेडिंग पढ़ने जैसा है, ध्यान से देखना. प्रथम गाथा में समय का प्रारब्ध कहने की प्रतिज्ञा की. देखो आचार्य भगवान अनुसंधान दिखाते हैं कि पहली गाथा में हमने क्या बताया, तो कि पहली गाथा में हमने कहा था कि मैं समय प्रारब्ध यानी समय सार को कहूँगा. तो समय सार को कहूँगा ये पहली गाथा में कहा. अब दूसरी गाथा में
समय सार खोलना शुरू करेंगे। समय सार का स्वरूप खोलना शुरू करेंगे। कब तक करेंगे? 12 गाथा तक, पीठिका की गाथा तक। 13वीं गाथा से क्या करेंगे? तो कि दूसरी गाथा से 12वीं गाथा तक जो समय सार का स्वरूप संक्षेप में बताया है, उसका विस्तार 13 गाथा से 415 गाथा तक करेंगे। फिर से पहली गाथा में प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में कहा कि मैं समय प्राभृत को कहूँगा, यानी समय सार को कहूँगा। अब बीजी गाथा से समय सार का अर्थ खोलना शुरू करेंगे कि समय सार किसको कहे। वो जो समय सार का स्वरूप खोलना शुरू करेंगे, वो 2 गाथा से 12 गाथा तक खोलेंगे। वो 2 गाथा से 12 गाथा पीठिका की गाथा कहने में आती है, भूमिका की गाथा कहने में आती है। संक्षिप्त में समय सार समझाया 2 गाथा से 12 गाथा तक। 13वीं गाथा से 415 गाथा तक, दूसरी गाथा से 12 गाथा तक का जो संक्षिप्त वर्णन था, उसका विशेष विस्तार करेंगे। अगर तू समय सार एक शब्द से जो समय सार समझ ले, तो पूरा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने में समझ में नहीं आया तो 2 गाथा से 12 गाथा तक पढ़ ले। इतने में समझ में आ गया तो 13 से 415 गाथा समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 से 12 गाथा में भी तेरा सम्यक परिणमन नहीं हुआ, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, तो 13 गाथा से 415 गाथा तक उसका तो चिंतन कर, मनन कर, घुटन कर और अनुभव करने का प्रयत्न कर। तो अब देखो क्या है हेडिंग में। प्रथम गाथा में समय प्रावृत कहने की प्रतिज्ञा की। वहाँ वो आकांक्षा होती है कि समय किसको कहते हैं, समय क्या है। इसलिए अब पहले समय को कहने में आता है। देखो समय सार, उसमें 2 शब्द है, समय, दूसरा सार। पहला समय की बात बताएंगे कि समय किसको कहना चाहिए। फिर से हेडिंग जो है उसका गुजराती देखो। આચાર્ય ભગવંતે પહેલી ગાથામાં સમય પ્રાવૃત કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે। બીજી ગાથાથી સમયસાર શબ્દને ખોલશે 12 ગાથા સુધી। 13 ગાથાથી 415 ગાથા એ બીજી ગાથાથી 12મી ગાથા સુધીનો વિસ્તાર છે। समय सार शब्दथी जो तू समझी ले ने आत्मानो अनुभव करी ले, तो 2 થી 415 गाथाना अभ्यास की जरूर नहीं। कदाच समयसार शब्द थी तू न समझो
તો 2 થી 12 ગાથાનો અભ્યાસ કર અને આત્માનો અનુભવ કરી લે. એટલાથી પણ ન થયો તો 13 થી 415 ગાથા એનું ચિંતન મનન કરીને તું આત્માની અનુભૂતિ કરી લે. તો અહીંયા કહ્યું કે સમય પ્રારબ્ધ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી ત્યાં એ આકાંક્ષા થાય છે કે સમય એટલે શું? સમય કોને કહેવું? તેથી હવે પેલા સમયને કહે છે. તો હવે ગુરુવારે અહીંથી ચાલશે વિષય. સમય થયો છે. કોણ જય બોલાવે છે? હા. દેવનો જય હો, મહાત્નો જય હો, જય હો, જય હો, જય હો. અનો જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર. જય જયકાર, જય હો. ભગવાનનો જય હો. નો જય હો. જય હો. જય હો, જય હો. જય હો. જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર.